Hello everyone, welcome back to our channel and we are here with the second part of Employee State Insurance Act 1948. In the last video, we have covered the important definition of this act which covered the family, dependent. So these are the important definition to understand what is the Employee State Insurance Act works. So if you haven't watched this video, please you need to watch the part first to understand, to get the basic understanding of these particular words which are going to be used in this particular act. So moving forward without wasting any time, the chapter second, we are going to start with the chapter second. The section third of the chapter second talks about establishment of employee state insurance cooperation. This particular cooperation talks about and concern about the administration of this act. इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इस एक्ट के अंदर एक कोऑपरेशन बनाने की बात की गई है, वो सेक्शन थर्ड में की गई है। प्लस ये जो बॉडी होगी, ये जो आपका कॉपरेशन होगा वो रजिस्टर्ड होगा एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। इस पर्टिकुलर एक्ट में many places, many sentences you are going to find just written as a cooperation. So always remember, whenever the word corporation come under that particular sentence or any sentence, so simply relate that they are talking about employee state insurance corporation which has been established under the section 3rd of this act. Moving forward, Section 4 talk about the constitution of this cooperation, means who are the people, who are the member are going to be part of this particular corporation. First one is the chairman and a vice chairman which are going to be appointed by the central government. The second one is a not more than 5% which are also be appointed by the central government. A representative of the each state, every single state going to have their representative which are going to be appointed by that particular state government only. One representative of the union territories as well, और उसको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. मूविंग फॉरवर्ड, 10 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एसोसिएशन. Similar with the employee, 10 members are going to be there for the employee representative. Central government appoint karegi but after the consultation of the recognized employee trade unions, जिसमें आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आता है एंड हिंद मजदूर सभा and n number of other federations and the trade union came under this. 2 मेडिकल प्रोफेशन रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है आफ्टर रिकॉग्नाइज बाय द मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन. 3 मेंबर फ्रॉम द पार्लियामेंट जिसमें से 2 लोकसभा एंड एक राज्यसभा के होंगे जो इलेक्ट किए जाएंगे बाय देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस. एंड देयर वुड बी 1 डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन जो CEO की तरह एक्ट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर बॉडी. मूविंग फॉरवर्ड, under section 5 the terms and the tenure has been defined. So कितने साल के लिए या कितने साल के लिए अपॉइंटेड हैं? तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 5% जो अपॉइंट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट फ्रॉम ईच स्टेट एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये सब आपके ऑफिस को इंजॉय करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पीपल, इनके अलावा जो मेंबर्स बच रहे हैं जिसमें रिप्रेजेंटेटिव आप हैं एम्प्लॉयर के, एम्प्लॉई के, मेडिकल प्रोफेशन के और आपके पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सिर्फ टेनर सर्व करेंगे फॉर 4 years. तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल थिंग टू रिमेंबर. मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 7 ऑथेंटिकेशन ऑफ द ऑर्डर्स एंड डिसीजंस. जितने भी डिसीजंस और ऑर्डर्स निकलेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन ऑफिस उस पर साइन होना ज़रूरी है डायरेक्टर जनरल का टू मेक श्योर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर, साइन किसका होना चाहिए? डायरेक्टर जनरल का होना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, द सेकेंड बॉडी हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 8 विच इज़ स्टैंडिंग कमिटी. इसमें कौन कौन होगा? देयर वुड बी 1 चेयरमैन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, 3 कॉर्पोरेशन मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, 3 मेंबर्स होंगे कॉर्पोरेशन के ही जो 3 स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट कर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे.
8 मेंबर्स होंगे जो ESI कॉर्पोरेशन से होंगे, उसमें से जो 3 मेंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर को, 3 मेंबर होंगे एम्प्लॉय को, 1 मेंबर फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग एज अ मेडिकल प्रोफेशन एंड 1 मेंबर गोइंग टू बी इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन बाय द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, डायरेक्टर जनरल वुड बी देयर. That particular you can say position will be ex officio. So this is very basic. Let me revise you. Section 3 is establishment of the cooperation. Section 4 is the constitution. Section 7 is the authentication. Section 8 is the standing committee. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 9 की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी में जो टर्म्स हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के टेन्योर वो क्या होंगे. देन अगेन सिमिलर वे में आप याद कर सकते हो. चेयरमैन, 3 मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड 3 मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटिंग स्टेट, ये सब इंजॉय करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर मेंबर्स, जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय हैं, मेडिकल प्रोफेशन है एंड कॉर्पोरेशन है, वो कहीं ना कहीं जो टेनर इन्जॉय करेंगे वो 2 ईयर्स का करेंगे. तो डिफरेंस क्या है. सेम नेचर ऑफ द पीपल फ्रॉम द कॉर्पोरेशन गोइंग टू हैव द ऑफिस फॉर 4 ईयर, बट फॉर द स्टैंडिंग कमिटी दे आर गोइंग टू होल्ड द ऑफिस फॉर द 2 ईयर्स. मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड इम्पॉर्टेंट बॉडी अंडर दिस एक्ट इज मेडिकल बेनिफिट काउंसिल. ये काउंसिल क्या करता है, जितने भी मेडिकल रिलेटेड आपके कंसर्न हैं, इंश्योरेंस किसको मिलना चाहिए, क्लेम कितना होना चाहिए, कितनी सीरियसनेस है उस पर्टिकुलर सिकनेस की, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है फॉर द सिकनेस, फॉर द मेडिकल, फॉर द डिसेबलमेंट, फॉर द एक्सीडेंट या फिर फॉर द मर्टर्निटी, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं. फॉर दैट पर्टिकुलर मेडिकल कंसर्न द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल इज़ देयर. तो इसमें चेयरमैन है, देयर इज़ अ चेयरमैन, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के होंगे. इट्स गोइंग टू बी एक्स ऑफिशियो. को चेयरमैन होंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो. मेडिकल कमिश्नर होंगे ऑफ द कोऑपरेशन, दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑल्सो एक्स ऑफिशियो. 1 रिप्रेजेंट फ्रॉम द ईच स्टेट, बट एक्सक्लूड किया जा रहा है यूनियन टेरिटरी को, जो अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के. 3 मेंबर होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है. 3 मेंबर फ्रॉम द 3 मेंबर होंगे जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही होगी. 3 मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, जिसमें एटलीस्ट देयर शुड बी 1 वुमेन जो अपॉइंट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो आप याद कैसे कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, ऑल द मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. दैट्स द इजी ट्रिक. देन टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, वो क्या होने वाला है, सिंपली सेम है. डायरेक्टर जनरल हेल्थ ऑफिस के जो चेयरमैन हैं और 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट, दे आर गोइंग टू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, member or representing the employer medical profession will be holding the office for the 4 years, similar as the cooperation. Then section 11, resignation. कैसे resign करेंगे, what is the process of the resigning of the member of the council or the corporation or the committee. तो simply they are have to write the resignation to the central government because they are appointed by the central government. So easy one. उनके मेंबरशिप को सीज कैसे किया जा सकता है, what are the condition they are going to be seized. तो there is the first condition, they have to attend all the meeting. If they are not able to attend, तो at least 3 consecutive meeting को वो avoid नहीं कर सकते. If they are not attending consecutive 3 meeting, the membership of that particular member will be seized. First one. Second, the central government can remove the member simply. Central government has the power to remove the membership of employer, employee or any medical profession अगर simply वो उस particular group से अब belong नहीं कर रहे हैं. जो employee थे वो शायद अब employee नहीं है, they are turned into a businessman, whatsoever reason. A member become ineligible for the representative of Lok Sabha and Raj Sabha
अगर वो इनएलिजिबल हो जाते हैं टू होल्ड द सीट ऑफ द होल्ड द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो सिंपली वो उसे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं और दैट पर्टिकुलर पर्सन आर सीज टू बी पार्लियामेंट मेंबर, उस केस में भी मेंबरशिप विल बी सीज्ड. मूविंग फॉरवर्ड, डिस्क्वालीफाई कब होंगे? सिंपली दैट पर्सन इज कंसिडर नाउ एज अनसाउंड माइंड बाय द कोड, या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हैज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द कॉन्टैक्ट, और वो कन्विक्टेड हो सकते हैं किसी भी आपके केस में, तो दिस पर्टिकुलर टाइम दे आर गोइंग टू बी डिस्क्वालिफाइड. So that's all for this particular video. We are going to continue this act in the different parts, because this is very big and very descriptive act. That's why I have cut down this act into the smaller videos. I hope you learn. I hope you enjoy. Thank you for watching. Keep following us.